Students, today we are going to discuss about the functional grammar and the topic name is voice. First of all, we will try to understand what the exact meaning of voice is. So, the meaning of voice is a form of verb. Form of verb. What type of form is this? A voice is a form of verb that tells us either something is done to the subject or something is done by the subject. Let's have an example. Suppose I write a cat kills a mouse. I have written a sentence in active voice. So, but what is the difference between? So, there are two type of voices: active and passive voice. What happen in the case of active voice? Subject of the verb does something, or the subject of the verb is the doer of the action. Whereas in passive voice, something is done to the subject. This is the basic difference between both of them. Let's have a look how to convert this sentence into passive. A mouse is killed by a cat. I have written this sentence in passive voice. Now you can see the differences between both of them. In active voice, the subject is cat and this cat is the doer of the action. And the sentence number 2, the subject is mouse and this is not the doer of the action, whereas something is done to the subject. So this is the basic difference between active and passive. Let's have a quick recap. The meaning of voice is the form of a verb. It is a form of verb that tells us either something is done to the subject or something is done by the subject. In active voice, something is done by the subject, whereas in passive voice, something is done to the subject. This is the basic difference between both of them. So I will try to explain in Hindi कि एक्टिव वॉइस में वॉइस क्या होती है. वॉइस वर्ब की वो फॉर्म होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि या तो सब्जेक्ट ने कुछ करा है या सब्जेक्ट को कुछ हुआ है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कुछ करता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कुछ हो जाता है. अब आप इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैट सब्जेक्ट है. आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है? ये बात हमको पहले समझनी पड़ेगी. कोई भी नाउन या प्रोनाउन, एनी नाउन और प्रोनाउन that is placed earlier to the verb is called subject. Any noun or pronoun that is placed earlier to the subject, that is called earlier to the verb, that is called subject. Any noun or pronoun that is placed after the verb, that is called its object. So what does the rule says? Rule says while converting a sentence from active voice to passive voice, subject of the active voice become object in the passive voice and object of the active voice become subject in the passive voice. एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है. ये रूल्स ये बोलते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स समथिंग इज टू बी, व्हाट इज टू बी डन? सब्जेक्ट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. नेक्स्ट थिंग्स, किन किन वर्ब की पैसिव फॉर्म बन सकती है वो भी आपने ध्यान में रखनी है. अ वर्ब should be transitive. Suppose we have to convert a sentence of active voice into passive voice, so we need to have a transitive verb. There are two type of verb, transitive and intransitive. Transitive verb उन वर्ब को बोलते हैं
जिनको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। Intransitive verb is a sort of verb that do not or that does not require any particular object to express its meaning. This is the basic difference between transitive and intransitive verb. तो इन एग्जाम्पल से आपने क्या समझा कि सबसे पहले समझने की ज़रूरत क्या है। हमने वॉइस को समझा कि वॉइस है क्या। वॉइस वर्ब की वो फॉर्म है जिससे हमें ये पता चलता है कि या तो सब्जेक्ट ने कुछ करा है या सब्जेक्ट को कुछ हुआ है। एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हैं कि जो पहले मैंने लिखा है, पहली लाइन है, ये एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है, और इसमें एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट अ कैट है, और कैट कुछ कर रही है। अब क्या कर रही है? माउस को मार रही है, ठीक है ना। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस में इसका जो सब्जेक्ट होता है इसको कुछ होता है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि अब माउस इसका सब्जेक्ट है और इसको कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको मारा जा रहा है। तो सिंपल सा यही एग्जांपल है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कुछ करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कुछ हो जाता है। बस इतना आपने समझना है कि वॉइस क्या है। वॉइस वर्ब का वह रूप है, वर्ब की वो फॉर्म है जिससे हमें पता चलता है कि ईदर समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट और समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट। या तो सब्जेक्ट को कुछ हुआ है और या सब्जेक्ट को कुछ ने कुछ करा है। अंतर इतना है, ये वर्ब है। अगर जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब से पहले रखा जाता है तो उसे वर्ब का सब्जेक्ट बोलते हैं। जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बाद में रखा जाता है तो उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। बाकी रूल्स तो अलग अलग टेंसेस के लिए अलग हैं। देयर आर 12 टेंसेस इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली 8 ऑफ देम कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous. These are the 4 tenses. We have no passive forms. ये आपने रूल ध्यान में रखने हैं। बाकी टेंसेस के जो रूल है वो अलग अलग है। जितना समझना था आपने उतना समझ लिया। कभी कभी क्या होता है कि एक एक वर्ब के 2-2 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के कुछ स्पेसिफिक रूल है। Suppose I write here, my father gave me a pen. My father gave me a pen. The word I have underlined is verb. This is action word. And my father is the subject of in this sentence, and me and pen, there are 2 objects, 1 and 2. There are 2 objects in this sentence. इस sentence में आप देख सकते हैं कि verb जो gave है इससे पहले my father subject है और me और a pen, there are 2 objects. तो रूल क्या बोलता है कि suppose this type of sentences are to be converted into passive, so only one of the sentence is to be कन्वर्टेड इंटू सब्जेक्ट। सिर्फ एक ही जो ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी कन्वर्टेड इंटू सब्जेक्ट। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में चेंज करना है। ध्यान में रखिए, जनरली जो हम पहले यूज करते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो बाद में यूज करते हैं उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको कन्वर्ट करते समय आपको एक चीज में ध्यान में रखना है कि अब आपने पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है। द सेंटेंस सीम्स टू बी इन पास्ट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी एक ऑब्जेक्ट को आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब देखिए जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन होता है, जैसे हम आई लिखेंगे या वी लिखेंगे या मी लिखेंगे या माइन लिखेंगे, तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। ऑल दीज 4 वर्ड्स आर द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। लेकिन जब भी हमें इन प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पे रखना होता है तो हम आई और वी को यूज करते हैं, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। बट व्हेनेवर दीज
words are to be placed in place of object, then we used me and mine. यानी ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी और माइन, और आई और वी जो है सब्जेक्टिव केस हो गया। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे है, लेकिन हम ध्यान में ये रखना है हमने कि हम इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम मी को आई बना देंगे, मी को हम आई में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का तो रूल ही है कि उसमें वाज वर्ब लगेगा, आई वाज। देन द रूल सेज दैट ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज टू बी यूज्ड। वर्ब की 3 फॉर्म, हमें थर्ड फॉर्म जो होती है जिसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। आई वाज गिवन अ पेन बाय माय फादर। आप चाहें तो इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। जनरली आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे पहचानना है कि कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे माय फादर गेव व्हाट, तो क्या दिया? अ पेन। माय फादर गेव व्हाट, क्या दिया? अ पेन। तो ये पेन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम वर्ब के आगे व्हाट जोड़ते हैं तो हमें सीधा सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। उसी तरीके से अगर हम इस वर्ब के आगे इमेजिन करके whom जोड़े, whom, यानी अगर what जोड़ते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है, और अगर इसको whom मीन्स किसको, whom अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं माय फादर गेव व्हाट अ पेन, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माय फादर गेव whom, किसको दिया? मुझे दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेथड होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने की। है आपने एक बात और ध्यान में रखना कि कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर कुछ वर्ड ऐसे हैं कि उनका पैसिव फॉर्म नहीं बन जाता है, जबकि वहां पर ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। जनरली आई वाज आस्क्ड सेवरल टाइम बाय माय स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझसे क्या पूछा कि एक सेंटेंस उन्होंने मुझे बताया कि आई एम गोइंग टू मार्केट। ये एग्जाम्पल था, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर बच्चों ने मुझे बताया कि सर दिस इज यू हैव एक्सप्लेन व्हाट द सब्जेक्ट एंड व्हाट द ऑब्जेक्ट इज। गोइंग इज द मेन वर्ब, the subject of this verb is I and the object of this verb is market। इसका सब्जेक्ट भी है और इसका ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन क्या होता है जनरली इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है? तो इसका भी आप ध्यान में रखेंगे एक चीज, क्योंकि जनरली ये जो वर्ब गोइंग है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होने के साथ साथ भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो मार्केट है ये ऑब्जेक्ट जरूर है, दिस इज इंडीड अ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान में रखना। अगर किसी ऑब्जेक्ट के आगे किसी प्रीपोजिशन का यूज हुआ है तो आप ये बात ध्यान में रखना कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर टू का यूज नहीं हुआ होता तो आप कह सकते हैं कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके पहले टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, इसलिए ये टू वर्ब जो टू प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट टू द वर्ब ना कह के इसके बदले हम इसको ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन कह सकते हैं। आपको ये चीजें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी तो सिंपल से रूल है कि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट अगर सिंपल से बिलोंग करता है तो इज एम आर के साथ में आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। फॉर्मूले वो अलग है, लेकिन बेसिक्स जो है वो आपको मैं, ये ट्रायल वीडियो है, इसके बाद मैं इसी तरीके की वीडियो आपको डालता रहूंगा और समझाता रहूंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। दिस वीडियो इज कॉमन टू ऑल क्लासेस बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट न्यू फॉर यू, दिस हैज ऑलवेज बी ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस राइट फ्रॉम जूनियर सेक्शन टू अप टू 12th स्टैंडर्ड। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये वो चीज़ें हैं जनरली जो चीज़ें जनरली स्कूल में थोड़ा कम पढ़ाई जाती है, इसीलिए मैंने आपको वॉइस का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि जनरली बच्चे वॉइस को पहचान नहीं पाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि एक्टिव वॉइस होता ही क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है और वॉइस होता ही क्या है।